morning, student. Today we will discuss the new article of gravitation, Science 1 Physics, that is variation in the value of small g. Variation means change in the magnitude value of the small g. Small g means acceleration due to gravity. In the previous lecture we discussed what is the small g, what is the formula for small g, and what is the value of that small g, on which things small g acceleration due to gravity depends. Okay, we'll now recap shortly the previous lecture, that is acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity is denoted by the letter small g. It is nothing but the acceleration produced in the object due to the gravitation force of earth. Means it is also acceleration, but that acceleration is due to the gravitation force, and the equation or formula for that acceleration due to gravity is small g equal to g capital M upon r square. What is capital G? Capital G is universal gravitation constant, capital M mass of the earth, and r is radius of the earth. But in which condition? When the object is kept on the earth's surface, then the distance between the two objects is r, capital R. Okay, remember here small g is nothing but the acceleration due to gravity depends on mass of the earth and radius of the earth, but does not depends upon small m means mass of the object. मास ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू डिपेंड नहीं है. अलग अलग मासिव ऑब्जेक्ट के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कैसे रहेंगी? सेम रहेंगी. ओके, नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी? हाउ वी कैन फाइंड आउट मैग्नीट्यूड, इट्स वैल्यू इन जनरल और एवरेज वैल्यू? दैट एवरेज वैल्यू वी कैन फाइंड आउट with the values of these three factors, that is capital G, capital M and capital R. We know the value of capital G 6.67 into 10 to the power minus 11. Capital M means mass of the earth. Mass of the earth is 6 into 10 to the power 24 kilogram. And what about the radius of the earth? Average radius of the earth is nothing but the 6400 kilometer. This is the radius of the earth and it's a square. When we convert this kilometer into meter and square it, and after solving these factors, that is product and division, then we get the approximate value of acceleration due to gravity. Small g is nothing but the 9.8 meter per second square. This value is average value on the earth's surface. This value is not fixed value like the capital G. Capital G is universal gravitation constant, but small g is not, the value of small g is not fixed on the earth's surface, above the earth's surface and below the earth's surface. That variation in the small value of small g, that thing we can discuss in this article, today's article, that is nothing but the variation in the value of small g. How the value of small g will be changes, on which factor small g will be changes, that factors are here. Number 1, small g will be changed or variation in the small g due to the, किसकी वजह से चेंज हो सकती है वैल्यू स्मॉल जी की? ड्यू टू द चेंज अलोंग द अर्थ सरफेस. अर्थ सरफेस पे अलग अलग जगह पे अलग अलग स्मॉल जी की वैल्यू हो सकती है. जैसे कैपिटल जी की वैल्यू यूनिवर्स में कहीं पे भी जाओ किसी भी कंडीशन में वैल्यू कांस्टेंट रहेंगी, सेम रहेंगी, वैसे स्मॉल जी का नहीं है, ये एवरेज वैल्यू है. स्मॉल जी की वैल्यू ऑन द अर्थ सरफेस पे भी अलग अलग जगह पे अलग अलग रहने वाली है. अब ये कैसे? देखो, अर्थ सरफेस अभी तक क्या कंसिडर किया गया है कि अर्थ सरफेस इज कंसिडर एज अ स्फेरिकल बॉडी, सॉलिड स्फेरिकल बॉडी.
spherical in shape. Spherical in shape. Earth is spherical in shape, but in reality Earth is not spherical in shape. Earth is somewhat horizontal egg. जैसे हॉरिजॉन्टल एग रखा गया है उस तरह से, तो उस हॉरिजॉन्टल एग के पोजीशन में, एग्स के पोजीशन में किस तरह शेप बन जाएगा इसका? समवॉट इलिप्टिकल. मीन्स दिस इज द पोलर रीजन and this is the equatorial region. Means when we kept horizontal egg, think that the shape of the earth is similar to the horizontal egg, then outer part is bulgous part and upper one means polar region part is flat. Means the real shape of the earth is somewhat bulgous at the equator. सामने आया हुआ रहेगा, कहाँ पे? इक्वेटर पे बल्ज रहेगा, और ऊपर से और नीचे से किस तरह से रहेगा? फ्लैट रहेगा. मीन्स द रियल शेप ऑफ द अर्थ इज समवॉट फ्लैट ऑन द पोल्स एंड बल्जेस एट द इक्वेटर. तो इसकी वजह से क्या होने वाला है? अब देखो, जैसे अगर अर्थ स्फेरिकल शेप में है, अर्थ अगर स्फेरिकल शेप में है तो अर्थ की हर जगह पे, हर सरफेस पे, हर जगह पे रेडियस कैसे रहने वाली है? सेम रहने वाली है. रेडियस विल बी सेम ऑन ईच एंड एवरी पोर्शन ऑफ द अर्थ, बट ड्यू टू डिफरेंट शेप ऑफ द अर्थ, flat on the poles, bulges at the equator, the radius of the earth is different at different positions. See here, this is the center of the earth, this is the earth surface at the pole, and this is earth surface at the equator. इक्वेटर पे रेडियस सेंटर ऑफ द अर्थ से कहां तक रहेंगी? इक्वेटर सरफेस तक. तो ये हो गई रेडियस ऑफ द अर्थ एट इक्वेटर. Okay, this is the radius of the earth at equator and this is the radius of the earth at pole. तो अब आपको क्लियर समझ में आ रहा है कि रेडियस चेंज हो रही है. अगर वही अर्थ स्फेरिकल शेप में रहता तो रेडियस सेम रहती, लेकिन अर्थ का शेप फ्लैट ऑन द पोल्स और बल्ज और द इक्वेटर की वजह से कहीं पे रेडियस कम रहेंगी तो कहीं पे रेडियस ज़्यादा रहेंगी. तो रेडियस मिनिमम कहाँ पे रहेंगी? पोल पे. जैसे ऊपर ये वाला पोल रहो या ये वाला पोल रहो, नॉर्थ पोल रहो या साउथ पोल रहो, नॉर्थ पोल की रेडियस या साउथ पोल की रेडियस कम रहेंगी और इक्वेटर की रेडियस क्या रहेंगी? ज़्यादा रहने वाली है. तो इसकी वजह से क्या होने वाला है? पता है अपने को ये फार्मूला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का. अब इस फार्मूले की तरफ कॉन्सेंट्रेट करो. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और रेडियस ऑफ द अर्थ, इनमें रिलेशन कैसा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है? रेडियस ज्यादा है, मैक्सिमम है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मिनिमम रहेंगी. रेडियस अगर मिनिमम है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैक्सिमम रहेंगी. तो यहां पे देखो, अभी जो फ्लैट ऑन द पोल्स और बल्ज ऑन द इक्वेटर, इस तरह का शेप अगर अर्थ का कंसिडर करते हैं तो पोलर रेडियस है, दैट पोलर रेडियस इज स्मॉल. Polar radius is small. If polar radius is small, then acceleration due to gravity at the pole is maximum, large. Radius will be less, acceleration due to gravity will be large. Therefore, on the polar region at the pole, the radius will be less, and if radius will be less, acceleration due to gravity will be large. That acceleration due to gravity at the pole is, this value is average value. Now on the pole, acceleration due to gravity value is large because radius is less. That value is taken as 9.832 meter per second square. Okay, near about difference between the polar radius and equatorial radius is approximately 80 kilometer. Means 80 kilometer is larger on the equator as compared to polar radius. That's why the value of acceleration due to gravity on the pole is somewhat larger than the 9.8. See here, 9.832.
Okay, why? Because polar radius is small. If radius is small, acceleration due to gravity is large. Okay, now what happen? What about the acceleration due to gravity on the equator? At the equator, radius is large. If radius is large, inversely proportional to acceleration due to gravity. That's why acceleration due to gravity is less. The value of acceleration due to gravity is less on the equator, and that value on the equator, acceleration due to gravity at equator, now here that acceleration due to gravity is somewhat less than the 9.8, and that value is given as, taken as 9.78 meter per second square. This is the equatorial acceleration due to gravity. If you observe these two value, acceleration due to gravity is larger at pole, acceleration due to gravity is less at equator. Okay. Now you think if we move from, देखो क्या बता रहा हूं मैं, as we move from equator to pole, जैसे जैसे आप इक्वेटर की तरफ से पोल की तरफ मूव होंगे, इमेजिन करो कोई पर्सन अगर इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहा है, वो हर जगह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू चेक कर रहा है, तो वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू इक्वेटर से लेके पोल की तरफ जाते समय वो वैल्यू इंक्रीजिंग रहेंगे या डिक्रीजिंग रहेंगे? एज द पर्सन मूव्स फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, इक्वेटर से पोल की तरफ जाना है, अगर इक्वेटर से पोल की तरफ मूव हो रहा है कोई पर्सन, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी? तो इसके लिए भी यही फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। निकला है इक्वेटर से, जाना है पोल पे, person moves from equator to pole, then what happen? Radius will be decreasing or increasing? Yes, definitely radius will be decreases. At the pole, radius will be minimum. At the equator, radius will be maximum. Means radius will be decreases. Then what happen? Acceleration due to gravity will be increases. That's why any person when moves from equator to pole, acceleration due to gravity, value of acceleration due to gravity goes on increasing. तो स्मॉल जी क्या होने वाला है यहाँ पे? इंक्रीजिंग होने वाली है। तो वैल्यू क्या होने वाली है? बढ़ने वाली है। देखो पोल पे कम है और इक्वेटर पे कम है और पोल पे क्या है? ज्यादा है। अगर कोई पर्सन पोल से इक्वेटर की तरफ आना चाहता है तो वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कैसे होंगी? जैसे यहाँ पे इक्वेटर से पोल पे गया तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या हुई? इंक्रीजिंग, बिकॉज रेडियस विल बी डिक्रीजिंग, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सिमिलरली हियर ऑल्सो, इफ एनी पर्सन मूव्स फ्रॉम पोल टू इक्वेटर, देन रेडियस विल गोज ऑन इंक्रीजेस। एट द इक्वेटर रेडियस विल बी मैक्सिमम, at the pole radius will be minimum, means from pole to equator radius will be increases. If radius will be increases, acceleration due to gravity will be decreases, means from pole to equator small g will be decreases. ये क्लियर हुआ आपको? स्मॉल g की वैल्यू ऑन द अर्थ सरफेस पे अलग अलग जगह पे अलग अलग रहने वाली है। The value of small g is different at different places. इसका रीजन क्या है? क्योंकि अर्थ ये स्फेरिकल शेप में नहीं है, पोल से फ्लैट है और इक्वेटर से कैसे है? बल्ज है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है? इक्वेटर की रेडियस ज्यादा है, पोल की रेडियस कम है। तो जहां पे रेडियस ज्यादा वहां एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम रहेंगे, जहां पे रेडियस कम वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा रहेंगे। तो इक्वेटर से पोल की तरफ जाते समय रेडियस डिक्रीज हो रही है, अगर रेडियस डिक्रीज हो रही तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीज हो रही। वैसे ही पोल से इक्वेटर की तरफ जाते समय रेडियस इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होना है? इंक्रीज होना है। तो ये वेरिएशन समझ में आ गया। अगर ये क्लियर है तो सर ये वैल्यू क्यों लेते? तो ये तो वैल्यू कैलकुलेशन के लिए, फार्मूला बनाने के लिए या फार्मूले में पुटअप करने के लिए एवरेज वैल्यू लेना चाहिए।
अगर पर्टिकुलर प्लेस पे वैल्यू दी हुई है, इक्वेटर पे या पोल पे या किसी पोजीशन पे, तो वो वैल्यू ले सकते हैं। अगर इन जनरल वैल्यू लेना है तो कौन सी वैल्यू ली जाती है? एवरेज वैल्यू। दैट एवरेज वैल्यू इज 9.8। समटाइम्स फॉर आवर कन्वीनियंस, कभी कभी कैलकुलेशन को आसान जाने के लिए इस स्मॉल जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी ली जाती है। 10 लेने की वजह से कैलकुलेशन आसान हो जाते हैं, लेकिन करेक्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या है? 9.8। ना स्मॉलर वैल्यू लेना है ना लार्जर वैल्यू लेना है। ओके, अब ये अगर वेरिएशन समझ में आ गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस अलग अलग जगह पे अलग अलग है, तो मैं एक छोटा सा सवाल आपको पूछने वाला हूं। थिंक ऑन इट। उस सवाल पे आपको कैसे सोचना है? कमर्शियल व्यू से, कमर्शियल माइंड से सोचना है। ओके, बिजनेस माइंड से सोचना है। उसमें से अपनी अर्निंग होना चाहिए, कुछ तो इनकम होना चाहिए। तो इस एंगल से आपको सोचना है। तो ये एंगल से सवाल रहेगा, तो उसे एंगल से आपको सोचना है। तो सवाल क्या है? देखो फिर से एक बार इन शॉर्ट बता रहा हूं मैं आपको कि जैसे ही आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होने वाली है? बढ़ने वाली है। और पोल से इक्वेटर की तरफ आते समय, पोल से इक्वेटर की तरफ आते समय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम होने वाली है। स्मॉल जी की वैल्यू चेंज है ऑन द अर्थ सरफेस, अलग अलग जगह पे अलग अलग। ओके, तो अपने को क्या करना है? प्रॉब्लम क्या है? सवाल क्या है? देखो, वी वांट टू सेल एंड परचेस ऑफ द गोल्ड। सोना खरीदना है और बेचना है। अलग अलग जगह से सोना अपने को परचेस करना है और किसी जगह पे जाके सेल करना है, बेचना है। तो इस पूरे वेरिएशन को सोचते हुए आपको सोचना है कि कहां से गोल्ड सेल करेंगे और कहां पे गोल्ड परचेस करेंगे। फॉर बेनिफिशियल, फॉर कमर्शियल व्यू, कमर्शियल एंगल से सोच के परचेस में भी बेनिफिट होना चाहिए और सेल में भी बेनिफिट होना चाहिए। इस तरह से अगर आप सोचेंगे तो किस पोजीशन से सेल करना चाहिए और किस पोजीशन पे परचेस करना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल दो ही पोजीशन कंसीडर करो, इक्वेटर और पोल। क्या इक्वेटर पे सेल करना चाहिए या परचेस करना चाहिए? क्या पोल पे सेल करना चाहिए या परचेस करना चाहिए? किस जगह पे बेनिफिट होने वाला है, बेनिफिशियल किस पोजीशन पे है? तो सोचो, परचेस करना है। परचेस करना है यानी अपने को खरीदना है, होलसेलर से अपने को गोल्ड लेना है। अगर परचेस करना है, गोल्ड लेना है, तो गोल्ड का क्या यूज करते हैं अपन? वेट, W = mg, वेट ऑफ द गोल्ड मेजर्ड इन यूनिट ऑफ mg, दैट इज न्यूटन। फार्मूला W = mg। अब उस गोल्ड का ये मास रहेगा और जहां से परचेस कर रहे, खरीदारी कर रहे, वहां की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब इसमें फिक्स वैल्यू किसकी रहेंगी? मास की। मास तो कोई चेंज होने वाला नहीं है, गोल्ड का मटेरियल है, वो मैटर है, वो तो चेंज नहीं होता। तो चेंज किस में है? स्मॉल जी में। अब स्मॉल जी कहां पे? इक्वेटर पे। कहां पे ले रहे आप? इक्वेटर पे। तो इक्वेटर पे स्मॉल जी कैसी है? लेस वैल्यू है, स्मॉल वैल्यू है। अगर स्मॉल जी लेस है, इक्वेटर पे लेस वैल्यू है, तो वेट भी कैसे आने वाला है? लेस आने वाला है। कहां पे? इक्वेटर पे। इक्वेटर पे वेट लेस हो रहा है उसका, किसका? गोल्ड का, जो कि अपने को खरीदना है। कम वेट का गोल्ड खरीदेंगे, परचेस करेंगे, तो अपने को गोल्ड ज्यादा आने वाला है। तो अपने लिए क्या है? ये बेनिफिशियल है। कम से कम वेट का, मास तो सेम है, इक्वेटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम है, इसलिए वेट भी क्या हो गया उसका? कम हो गया। हालांकि रियल में उसका वेट ज्यादा था, लेकिन अपने को कम वेट का मिल रहा है, इसलिए यहां पे बेनिफिशियल परचेस करने में है। अब यही गोल्ड कम वेट से लिया हुआ गोल्ड आने वाला है ज्यादा गोल्ड अपने को, उतने ही पैसे का। अब वही गोल्ड अपने को क्या करना है? सेल करना है। तो वो सेल जाके कहां करेंगे? पोल पे। अगर पोल पे जाके सेल करेंगे तो पोल पे क्या सिचुएशन है? वहां का वेट W = mg, m तो कांस्टेंट है, वेट कहां का है? पोल का। तो पोल पे स्मॉल जी की वैल्यू क्या होने वाली? m सेम रहेंगी।
तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दी पोल, तो पोल पे जाके क्या होने वाला है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ने वाली है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ गई पोल पे, इक्वेटर पे 9.78, पोल पे कितनी है 9.83, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वैल्यू बढ़ गई, तो वेट ऑन द पोल विल बी इंक्रीजेस, वेट बढ़ गया। यहां गोल्ड परचेस करते समय वेट कम हुआ था और यहां पे वेट क्या हो गया उसका, इंक्रीज हो गया, तो सेल करने में, दूसरे को बेचने में अपना ही बेनिफिशियल है। दैट्स व्हाई अंडरस्टैंड, when we purchase the gold on the equator and sell on the pole, it is beneficial for us, but in reality ऐसी तो कोई सिचुएशन आने वाली नहीं है, ऐसा तो नहीं कर सकते, इसमें बहुत से प्रॉब्लम्स आने वाले हैं। भले ही आप यहाँ से परचेस कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, इक्वेटर पे बहुत से कंट्री मिल जाएंगे आपको परचेस करने के लिए, लेकिन इतना लंबा सफ़र तय करके पोल पे जाएंगे और वहाँ सेल करेंगे, वहाँ अगर सोल्ड करेंगे तो वहाँ पे लेने वाला कौन है, भालू है, पोलर बियर है, तो वहाँ पे तो कोई गोल्ड लेने वाला नहीं है। बट थिंक ऑन दैट एंगल ऑल्सो, एमसीक्यूज बहुत बार ऐसे पूछे जाता है कि बाय कमर्शियल व्यू ऑन विच पोजिशन गोल्ड परचेस एंड सेल इज बेनिफिशियल फॉर अस, तो याद रखना जहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम है वहाँ पे वेट उसका कम होगा, तो वहाँ से परचेस करना इजी, और जहाँ पे वेट ज़्यादा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज़्यादा यानी पोल पे, वहाँ पे सेल करना बेनिफिशियल रहेगा। ओके, दिस पॉइंट विल बी क्लियर। नाउ चेंज अलोंग द अर्थ सरफेस, तो अलोंग द अर्थ सरफेस क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट पे आ जाएंगे, चेंज विथ हाइट। चेंज विथ हाइट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वेरिएशन देख रहे, फर्स्ट वेरिएशन क्या था, ऑन द अर्थ सरफेस रेडियस अलग अलग, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलग अलग, तो हाइट के हिसाब से अबोव द अर्थ सरफेस, हाइट कहाँ की, अबोव द अर्थ सरफेस, इसकी वजह से भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज हो सकती है। तो देखो, दिस इज आवर अर्थ सरफेस, सेंटर ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ द अर्थ, above the earth surface if we consider object is situated at this position at height h above the earth surface, तो यहाँ पे आप क्या हो रहे, above the earth surface जा रहे, तो as we move above the earth surface, consider this is our earth surface, and as any object moves above the earth surface, then what is the acceleration due to gravity? Either acceleration due to gravity remains same or changes, yes definitely changes, but how changes, again with the help of this relation, see here. This what is R? R is nothing but the distance between the object and center of the earth। अब यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है और ये अर्थ एक ऑब्जेक्ट है, इसका सेंटर ये है, रेडियस कैपिटल R है, h हाइट है अबोव द अर्थ सरफेस, इन दोनों को कंबाइनली क्या बोल सकते हैं, स्मॉल r। स्मॉल r क्या रहेगा, रेडियस प्लस हाइट, तो स्मॉल r क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। That's why our relation becomes G capital M upon small r square। ये रिलेशन कल भी देखा था, अबोव द अर्थ सरफेस स्मॉल r, अगर ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस पे तो कैपिटल R, लेकिन अभी ऑब्जेक्ट कहाँ है अपना, ऑब्जेक्ट इज अबोव द अर्थ सरफेस, दैट्स व्हाई स्मॉल r। स्मॉल r इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ द अर्थ एंड height above the earth surface of that object। Okay, now compare with distance। R is the distance between the two objects। As height increases means distance increases, रेडियस तो वही रहने वाला है, यहाँ पे हाइट इंक्रीज हो रही तो h की वैल्यू इंक्रीज होंगे, तो स्मॉल r की भी वैल्यू चेंज होने वाली है। तो एज स्मॉल r इंक्रीजेस, एज वी मूव अबोव द अर्थ सरफेस, फ्रॉम द अर्थ सरफेस एज द ऑब्जेक्ट मूव्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन, देन distance will be increases। As distance increases, acceleration due to gravity goes on decreases, because inversely proportional। As height increases, acceleration due to gravity decreases। तो वेरिएशन क्या होने वाला है, चेंज क्या होने वाला है हाइट के साथ, एज हाइट h अबोव द अर्थ सरफेस, हाइट जैसे जैसे इंक्रीज होने वाली है, याद रखो हाइट कहाँ पे है, स्मॉल r के बीच में है, कैपिटल R प्लस h, हाइट बढ़ेंगी तो स्मॉल r इंक्रीज होगा, स्मॉल r इंक्रीज होगा तो स्मॉल g क्या होने वाली है, डिक्रीज होने वाली है। तो एज हाइट इंक्रीजेस,
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल गोज ऑन डिक्रीजेस। हाइट क्या हो रही है? इंक्रीज। अगर हाइट इंक्रीज हो रही तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होने वाला है? डिक्रीज होने वाला है। ओके, अब कितने हाइट पे जाने के बाद कितना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज होने वाला है, इसके लिए आपको आपके टेक्स्ट बुक में कुछ एग्जाम्पल दिए हुए, वहां से कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। इतना तो क्लियर हुआ कि एज वी मूव अबव द अर्थ सरफेस हाइट विल बी इंक्रीजेस, और हाइट जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा? कम होगा। ऑन द अर्थ सरफेस पे इन जनरल एवरेज वैल्यू ऑन द अर्थ सरफेस पे कितनी ली जाती है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किसकी वैल्यू? स्मॉल जी। ओके, तो यहां पे देखो वन बाय वन कितने हाइट पे कितनी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रहेंगी। ऑन द अर्थ सरफेस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन जनरल कितना लिया जाता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब थोड़ा सा ऊपर आ जाओ, थोड़ा सा हाइट ऊपर आ गए। कहां पे? एट हाइट अबव द अर्थ सरफेस, एट हाइट 37 किलोमीटर, 36.5 किलोमीटर या अप्रोक्सीमेटली 37 किलोमीटर। ये 37 किलोमीटर पे अगर आप आ गए तो ये मैक्सिमम वैल्यू है किसकी? किसी आर्टिफिशियल बलून को अगर आप स्पेस में छोड़ेंगे तो वो बलून इतने हाइट तक जा सकता है, 37 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस, इतने हाइट पे जा सकता है। तो इस 37 किलोमीटर हाइट पे आप सोच रहे होंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बहुत कम हो जाएंगी, तो नहीं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू एज हाइट इंक्रीजेस, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम होंगी, लेकिन डिस्टेंस के हिसाब से। तो 37 किलोमीटर में कितना चेंज हो रहा है? देखो ऑन द अर्थ सरफेस कितना है? 9.8। तो 37 किलोमीटर ऊपर चले जाओ, 37 किलोमीटर अगर अप्रोक्सीमेटली ऊपर चले गए तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी हो रही है? 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अप्रोक्सीमेटली 0.13 या 0.07 इतनी ही वैल्यू ये चेंज हो रही है। यहाँ पे 9.8 है, यहाँ पे 9.77 है, तो वैल्यू थोड़ी सी कम हुई है, स्लोली कम हुई है 37 किलोमीटर के लिए। और थोड़ा ऊपर चले जाएंगे, 37 से लेके ऊपर चले गए कहाँ तक? एट द हाइट ऑफ 400 किलोमीटर। अब थोड़ा ऊपर चले जाओ, दिस 400 किलोमीटर हाइट इज द हाइट ऑफ, किसकी हाइट है ये? वेदर सैटेलाइट की। वेदर की इंफॉर्मेशन देने वाला जो सैटेलाइट है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, वेदर फोरकास्ट कहा जाता है, वेदर की इंफॉर्मेशन देने वाला जो सैटेलाइट है, उस सैटेलाइट की हाइट रहती है अबव द अर्थ सरफेस कितनी? 400 किलोमीटर। अब उस हाइट पे अगर आप चले जाएंगे तो उस हाइट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और कम होने वाली, बिकॉज हाइट विल बी इंक्रीजेस। एज हाइट इंक्रीजेस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस। तो इस हाइट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जो है वो कितनी होने वाली है? 8.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नियर अबाउट 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम हो गई। ओके, अगेन और थोड़ा हाइट बढ़ाते हो। अगर हाइट बढ़ाते गए और वो हाइट कहां तक आ गए? 36,000 किलोमीटर, मीन्स 36,000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर। यह हाइट किसकी है? दिस इज द अप्रोक्सीमेट हाइट ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट। कौन सा सैटेलाइट रहेगा? कम्युनिकेशन सैटेलाइट। इंफॉर्मेशन सिग्नल्स थ्रू आउट द वर्ल्ड या किसी कंट्री के लिए कम्युनिकेशन करना है तो उस कम्युनिकेशन सैटेलाइट की हाइट अबव द अर्थ सरफेस जो है वो कितनी रहती है? 36,000 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। तो इतने ज्यादा हाइट पे अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको समझ में आएंगे, कंसिडरेबल चेंज होने वाली है। 37,400 किलोमीटर तक आपको वैल्यू स्मॉल होती हुई दिखाई दी, 9.8 से 8.7 तक आए। लेकिन 36,000 किलोमीटर इतने ज़्यादा ऊंचाई पे अगर आप जाएंगे या वहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मेजर करेंगे तो दैट वैल्यू विल बी 0.223 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज लेस देन 1 बट नॉट 0। समथिंग इज देयर दैट वी विल डिस्कस इन द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ओके, तो ये क्लियर हुआ कि जैसे जैसे हाइट बढ़ते जाएंगी वैसे वैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होते? कम होते। तो 2 पॉइंट क्लियर हो गए। अलोंग द सरफेस
रेडियस चेंज होने की वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होती। अबोव द अर्थ सरफेस जैसे जैसे हाइट बढ़ते जाएंगी वैसे वैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होते जाएंगी। एज हाइट इंक्रीजेस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी गोज ऑन डिक्रीजेस। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे हाइट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ओके, नाउ वी डिस्कस द थर्ड पॉइंट, दैट इज हाउ द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंजेस विद द डेप्थ। जैसे हाइट अबोव द अर्थ सरफेस, हाइट कहाँ बोला जाता है, अबोव द अर्थ सरफेस, तो ये डेप्थ कहाँ रहेंगी, बिलो द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस की डेप्थ, सोचो ये अर्थ सरफेस है, दिस इज द सेंटर ऑफ द अर्थ, दिस इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, मीन्स अप टू अर्थ सरफेस, ये अपना अर्थ सरफेस है। अब जैसे जैसे बिलो द अर्थ सरफेस जाएंगे, अर्थ सरफेस से जैसे जैसे सेंटर की तरफ जाएंगे वैसे वैसे क्या इंक्रीज होने वाला है, डेप्थ तो इंक्रीज होने वाली है। डेप्थ कहाँ कहा जाता है, बिलो द अर्थ सरफेस। एज वी मूव इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ बिलो द अर्थ सरफेस, दैट इज कॉल्ड एज द डेप्थ। एज वी मूव downward direction, then depth will be increases. That depth is denoted by the letter small d. Okay, small d is nothing but the depth d. Now what happen, due to the increase in the depth below the earth surface. See here this relation, if we consider this relation, here is radius or here is r plus h, means small r above the earth surface. If you think that radius will, as depth below the earth surface goes on increases, radius will be decreases. If radius will be decreases, acceleration due to gravity increases, but this consideration is wrong. देखो मैंने क्या बताया, आप सोच रहे होंगे इसी फॉर्मूले से ये निकल जाएगा, तो इसमें आप क्या हो रहा है, डेप्थ नीचे नीचे आ रहे, जैसे जैसे डेप्थ नीचे नीचे आ जाएंगे डेप्थ इंक्रीज होंगी, वैसे वैसे रेडियस पहले इतनी थी अब रेडियस इतनी हो जाएंगी, फिर नीचे आ गए रेडियस ये, फिर नीचे आ गए रेडियस ये, फिर नीचे आ गए रेडियस ये, तो रेडियस कम हो रही है। रेडियस अगर कम हो रही है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ना चाहिए, लेकिन रियलिटी में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू बिलो द अर्थ सरफेस आल्सो गोज ऑन डिक्रीजिंग, कम ही होती है। तो ये फार्मूला क्या गलत है, नहीं, ये फार्मूला गलत नहीं है। सोचो आप खाली आर के बारे में सोच रहे, जैसे जैसे नीचे आएंगे वैसे वैसे रेडियस कम हो रही है, डेफिनेटली कम हो रही है, लेकिन व्हाट अबाउट द मास ऑफ द अर्थ। पहले अर्थ इतना था तो इसका मास m था, अब सोचो यहां से यहां तक इस डेप्थ तक आ गया आप, तो अपना न्यू अर्थ ये रहेगा, दिस इज अवर न्यू अर्थ। अब इसका मास क्या होने वाला है, कम होने वाला है। पहले बड़ा अर्थ था ज़्यादा रेडियस का, अब कम रेडियस का अर्थ बन गया, तो इसका मास जो है वो नया मास क्या होगा, m डैश, दैट मास आल्सो रिड्यूसेस, मास आल्सो रिड्यूसेस। दैट्स व्हाई combined effect of reduce in mass and reduce in radius, the acceleration due to gravity will be in not increasing, that will be decreasing. अगर आप सोच रहे होंगे कि रेडियस कम हो रही तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ना चाहिए, यस डेफिनेटली, लेकिन इस रेडियस के साथ मास का क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है। मास भी तो डिक्रीज हो रहा है, मास भी तो कम हो रहा है, तो ओवरऑल इफेक्ट मास का और रेडियस का दोनों भी डिक्रीज हो रहे हैं, इसलिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की भी वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज ही होती है, ये याद रखो। हाइट अबव द अर्थ सरफेस, अगर हाइट बढ़ती गई तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम हो रही है, तो डेप्थ बिलो द अर्थ सरफेस में भी गए तो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम ही होने वाली है। मीन्स तो यहां पे ये याद रखो, एज डेप्थ डी, डेप्थ बिलो द अर्थ सरफेस रहेगा, अगर डेप्थ इंक्रीज हुआ तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होने वाला है, डिक्रीज होने वाला है। डेप्थ इंक्रीजेस, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आल्सो इंक्रीजेस। तो ये बात याद रखो, एज डेप्थ डी इंक्रीज the value of small g, acceleration due to gravity goes on decreases, goes on decreases.
यानी ऑन देयर सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना कंसीडर किया जाता है 9.8। जैसे जैसे नीचे आएंगे वैसे वैसे क्या होगा, कम होते जाएगा। अगर सोचो यहाँ पे आ गए, यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 5 है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पे आ गए 3 है, सेंटर में आ गए तो रेडियस क्या हो गई 0, सेंटर में आ गए तो रेडियस क्या हो गई 0। डेप्थ कहां तक आए, सेंटर तक, डेप्थ बढ़ते 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 सेंटर तक आ गए तो रेडियस क्या है 0। तो gm अपॉन 0 एनी अपॉन 0, ये तो वैल्यू इन्फिनिटी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए मैथमेटिकली। लेकिन इस मास के बारे में सोचो, जैसे ही आप सेंटर में आ जाएंगे तो मास क्या रहेगा, वो भी 0। अगर ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर 0 हो गए तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वैल्यू क्या होने वाली है 0। दैट्स व्हाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर, मैक्सिमम डेप्थ बोल सकते हैं आप, मैक्सिमम डेप्थ मीन्स अप टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सेंटर ऑफ अर्थ, at center of earth which is equal to 0, because as we move towards the center of the earth depth will be increases, as depth increases acceleration due to gravity decreases and at the center acceleration due to gravity becomes 0। तो ये तीनों वेरिएशन समझ में आ गए, क्लियर हुए। कौन से वेरिएशन है स्मॉल जी के बारे में। नंबर 1, चेंज अलोंग द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस का शेप स्पेरिकल नहीं है तो किस तरह का है, फ्लैट ऑन द पोल्स एंड बल्ज एट द इक्वेटर। इसके वजह से क्या होता है, इक्वेटर की रेडियस ज्यादा रहेंगी, पोल की रेडियस कम रहेंगी। इक्वेटर की रेडियस ज्यादा है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम है, पोल की रेडियस कम है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा है, लार्जर है। अगर आप इक्वेटर से लेके पोल की तरफ जाएंगे, मूव होंगे, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होंगी, इंक्रीज होंगी, क्योंकि रेडियस डिक्रीज हो रही है। और जैसे ही आप पोल से इक्वेटर की तरफ आएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम होंगी, क्योंकि रेडियस इंक्रीज हो रही है, अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन। ओके, तो मैक्सिमम वैल्यू कहां पे है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, पोल पे, और मिनिमम वैल्यू कहां पे है, इक्वेटर पे। तो हाइट के बारे में क्या है, एज वी मूव अबव द अर्थ सरफेस हाइट विल बी इंक्रीजेस, एज हाइट अबव द अर्थ सरफेस विल बी इंक्रीजेस, हाइट विल बी इंक्रीजेस, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी डिक्रीजेस। जैसे जैसे हाइट बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू भी कम होती जाती है। हाइट बढ़ेंगी लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम होंगी। डेप्थ के बारे में, जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेंगी, डेप्थ कहां बोला जाता है, बिलो द अर्थ सरफेस, एज डेप्थ डी बिलो द अर्थ सरफेस गोज ऑन इंक्रीजेस, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी गोज ऑन डिक्रीजेस। तो एग्जैक्टली सेंटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वैल्यू क्या आने वाली है 0। तो ये दो बातों पे कंसिडर करो। दोनों ही केस में हाइट अबव द अर्थ सरफेस, सोचो ये अर्थ है, अबव द अर्थ सरफेस अगर कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम हो रही है। अर्थ सरफेस से नीचे कोई आ रहा है तो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वैल्यू कम हो रही है। तो अबव द अर्थ सरफेस और बिलो द अर्थ सरफेस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम होती है, डिक्रीज होती है। तो मैक्सिमम कहाँ रहेंगी, ऑन द अर्थ सरफेस पे। जब कोई ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस पे रहेगा तो वही मैक्सिमम, क्योंकि यहां से ऊपर गए तो भी डिक्रीज, नीचे आए तो भी डिक्रीज। तो इस दोनों फैक्टर को, हाइट और डेप्थ के फैक्टर को एक सिंपल ग्राफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये ग्राफ किसके वर्सेस किसका है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द वाई एक्सिस, डिस्टेंस ऑन द एक्स एक्सिस। डिस्टेंस यानी इसमें दोनों आ गए, हाइट अबव द अर्थ सरफेस भी आया और डेप्थ डी बिलो द अर्थ सरफेस भी आ जाएगा। दिस इज अवर ओरिजिन, ओरिजिन को सेंटर ऑफ द अर्थ भी बोल सकते हैं। दिस इज अवर सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ द अर्थ। अब यहां से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीज हो रही है और सेंटर ऑफ द अर्थ से डिस्टेंस कंसिडर करेंगे तो इस तरह से जाएंगे। तो सेंटर ऑफ द अर्थ से चलो, सेंटर ऑफ द अर्थ सरफेस से जैसे 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 आएंगे तो कहां तक आएंगे आप, सेंटर ऑफ द अर्थ सरफेस से चल रहे हैं, सेंटर ऑफ द अर्थ सरफेस से जैसे जैसे ऊपर आएंगे तो ये कहां पे आएंगे, अर्थ सरफेस पे। तो किसी एक पोजीशन को क्या ले लो, अर्थ सरफेस, दिस इज आवर अर्थ सरफेस। और अर्थ सरफेस से ऊपर जा रहे हैं तो अर्थ सरफेस से जैसे ही ऊपर जाएंगे तो यहां पे क्या इंक्रीज होगा,
अबोव द अर्थ सरफेस हो गया ये, दिस इज अवर अर्थ सरफेस। अबोव द अर्थ सरफेस क्या होगा, हाइट h। अबोव द अर्थ सरफेस क्या कहा जाता है, हाइट h। और अर्थ सरफेस से नीचे टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, अर्थ सरफेस से नीचे जाएंगे टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो इसको क्या कहा जाता है, डेप्थ d। तो दिस इज आवर अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस से सेंटर की तरफ आएंगे तो डेप्थ बोलेंगे, अर्थ सरफेस से अबोव द अर्थ सरफेस जाएंगे तो क्या बोलेंगे, हाइट। तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते ग्राफ, पता है अपने को एग्जैक्टली एट द सेंटर, एग्जैक्टली एट द सेंटर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर, दैट इज 0। सेंटर पे अर्थ सरफेस से बिलो द अर्थ सरफेस आ रहे कहां तक, सेंटर ऑफ द अर्थ तक, तो सेंटर ऑफ द अर्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वैल्यू क्या रहेंगी, 0। जैसे जैसे आप सेंटर से अर्थ सरफेस की तरफ जाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू बढ़ते जाएंगी, इंक्रीज होते जाएंगी। या सोचो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, मैंने बोला था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कहां पे मैक्सिमम रहेंगी कहां पे मैक्सिमम रहने वाली है, ऑन द अर्थ सरफेस। अगर आप अबोव द अर्थ सरफेस जाएंगे तो डिक्रीज, बिलो द अर्थ सरफेस जाएंगे तो डिक्रीज, लेकिन मैक्सिमम कहां पे, अर्थ सरफेस पे। तो मैक्सिमम ले लो अर्थ सरफेस पे, तो ये वैल्यू मैक्सिमम यहां तक रहेंगी, दिस विल बी, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, दैट वैल्यू इज कंसिडर्ड एज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, दिस मैक्सिमम वैल्यू से अगर टुवर्ड द सेंटर जाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू गोज ऑन डिक्रीजेस 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 डिक्रीजेस, एंड एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ द अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी 0। या 0 सेंटर से अगर जाएंगे तो एक्सेलरेशन ग्रेविटी बढ़ेंगी बढ़ेंगी बढ़ेंगी, लेकिन कहां तक, ऑन द अर्थ सरफेस तक। अब अबोव द अर्थ सरफेस अगर जाना है तो ये अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू मैक्सिमम, बिलो द अर्थ सरफेस गए सेंटर तक डिक्रीज होने वाली और 0। अबोव द अर्थ सरफेस चलो, अभी अबोव द अर्थ सरफेस भी पता है आपको, एज हाइट इंक्रीजेस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी डिक्रीजेस, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी डिक्रीज होने वाली। लेकिन 36,000 किलोमीटर पे भी वैल्यू 0 नहीं हुई। अगर 50,000 किलोमीटर लेंगे, 1 लाख किलोमीटर भी लेंगे तो वहां पे वैल्यू ये इससे कम आएंगी, 0.111, 0.102, लेकिन ये वैल्यू 0 नहीं होने वाली है, तो स्लोली डिक्रीज होने वाली है। किसी भी हाइट के लिए, कितने भी लार्जर हाइट के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 0 नहीं होती, इसलिए ये ग्राफ डिक्रीजिंग रहेगा। लेकिन इस ग्राफ का नेचर इस तरह का रहेगा, नेवर बिकम्स 0। ये एक्स एक्सिस को कभी टच नहीं करेंगी। ओके, दिस इज द वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू द हाइट h अबव द सरफेस एंड ड्यू टू द डेप्थ बिलो द अर्थ सरफेस। तो देखो यहाँ पे अर्थ सरफेस से अबव द अर्थ सरफेस जा रहे तो भी डिक्रीज है और बिलो द अर्थ सरफेस आ रहे तो भी डिक्रीज है। लेकिन एक बात याद रखना कि एग्जैक्टली एट द सेंटर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी 0। ओके, नाउ इन 2 मिनट विल रिवाइज इट। क्या क्या पढ़ा आपने आज कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फार्मूला क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली एवरेज वैल्यू क्या ली जाती है 9.8, और इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वेरिएशन किस फैक्टर के वजह से होता है। तो ये मेजर 3 फैक्टर है, ड्यू टू द शेप ऑफ द अर्थ, ड्यू टू द हाइट अबव द अर्थ सरफेस और ड्यू टू द डेप्थ बिलो द अर्थ सरफेस। तो शेप की वजह से क्या होगा, रेडियस चेंज होंगी, स्पेरिकल शेप नहीं है, रेडियस इक्वेटर पे ज़्यादा है, पोल पे कम है, तो जहाँ पे रेडियस ज़्यादा वहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम, जहाँ पे रेडियस कम वहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज़्यादा, लार्जर। हाइट की वजह से क्या है, सिंपल, एज हाइट इंक्रीजेस अबव द अर्थ सरफेस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस। इसके ये कुछ एग्जाम्पल डिस्कस किए। डेप्थ के बारे में क्या है, एज वी मूव डाउन द अर्थ सरफेस बिलो द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस बिलो द अर्थ सरफेस टुवर्ड द सेंटर, द डेप्थ विल बी इंक्रीजेस, एज डेप्थ इंक्रीजेस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आल्सो डिक्रीजेस। डेप्थ की वजह से डिक्रीज होने वाली है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी अबव द अर्थ सरफेस और बिलो द अर्थ सरफेस दोनों जगह क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज होने वाली है। तो यहाँ से ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताया,
कि अगर सेंटर ऑफ द अर्थ कंसिडर किया गया, अर्थ सरफेस अगर कंसिडर किया, अर्थ सरफेस से टुवर्ड द सेंटर डेप्थ बोला जाता है, अर्थ सरफेस से अवे फ्रॉम द अर्थ सरफेस हाइट कहा जाता है। तो अर्थ सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू मैक्सिमम है, अर्थ सरफेस से सेंटर की तरफ गए तो डिक्रीजिंग एग्जैक्टली एट द सेंटर, एंड अबोव द सरफेस गए तो गोज ऑन डिक्रीजेस बट नेवर जीरो अबोव द अर्थ सरफेस, एग्जैक्टली जीरो एट द अर्थ सेंटर। अगर आप सोचेंगे कि किसी बॉडी का वेट एट सेंटर ऑफ द अर्थ निकालना है तो वो वेट कितना होगा, अब यहां से आप क्लियर बता सकते हैं। वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ द बॉडी एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो पता है वेट का फॉर्मूला क्या है, W इक्वल टू mg। ये कहां पे लेना है वेट, सेंटर ऑफ द अर्थ पे, तो स्मॉल m तो चेंज होने वाला नहीं है, स्मॉल m तो कांस्टेंट है, तो स्मॉल m एज इट इज, स्मॉल g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कहां पे, एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ द अर्थ पे, और एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ द अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, जीरो। एनीथिंग multiply by 0 is always 0, that is acceleration due to gravity at the center is 0, that's why weight of the object is also 0। weightlessness condition सेंटर में भी आ सकती है। ओके, एनी डाउट? थैंक यू।